This is Ishan Javed, the CEO of the Corporate Trainer and a PhD scholar as well. As you know that the Career Vista is conducting training and development programs in the institution and as well as in the corporate sector regarding the leadership management, project management, HR, customer relationship management, sales and marketing. Today we have a panelist with us, Zishan Arif Saab. He is a banker as well and also a faculty member, adjunct faculty member of different universities of accounting and finance, a corporate trainer, facilitator, and a lecturer of finance. And also we have Nosheen Wakas over here, the seasoned panelist and educationist working with different academia sector as well. Also we have Nayab Seher. She is also a corporate trainer and a banker and working in a banking sector as a corporate relationship management consultant and trainer as well in the Bank of Punjab in the head office as well and working with different platforms as a trainer and a facilitator as well. Thank you so much to all of you for joining this today's network of the training session that is based on the impact of customer relationship management in the corporate era of life. We have started our meeting with the panelist session. Zishan Arif sir to continue and proceed further. Right, Ji. Thank you so much, Zishan Saab. Hello, viewers, panelists, and participants. First of all, I would like to introduce myself. This is Mohammad Zishan, associated with financial industry since last 20 years, mainly dealing with AML, CFT, compliance, anti-money laundering, and countering financing terrorism. And by qualification, I am MPhil in finance. Along with this, I am a certified anti-money laundering professional. Then, apart from my job, I am also a lecturer in multiple universities, mainly teaching accounting and finance courses, and can say a small scholar with a research article published in the X-rated Journal of IOBM University. And well, with regards to today's topic, तो जिशान साहब जो हैं बेसिकली वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो टॉपिक लेके आते हैं और either that one is related with us with our specialties or not, कि हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है उससे वो रिलेट होता है, लेकिन एक दिल करता है कि जो भी टॉपिक है उसके ऊपर ज़रा थोड़ा, चूँकि पढ़ने की आदत है, पढ़ाने की आदत है, तो वो थोड़ा उसके ऊपर हम भी स्टडी कर लें, कुछ हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा और इसी बहाने जो है हम आपकी नॉलेज में भी इजाफा कर देंगे। तो अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पहले तो हम समझते हैं कि लाइक व्हाट इट इज़। यूजुअली हमने बेसिकली मैं चूँकि कॉस्ट के हवाले से भी पढ़ा रहा होता हूँ कोर्सेज, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, तो उसके अंदर मेनली जो हम हमारे एक बड़ा ही कोर सेगमेंट होता है जिसे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं, प्रोसेस ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं, जो कि मेनली किसी भी कंपनी की स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके हवाले से इलाबरेट करूँ तो व्हेन वी सेज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, तो बेसिकली एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर जिसके लिए आप स्पेसिफिकली किसी जो है वो वेंडर से एक कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करते हो, उसे कस्टमाइज्ड जो है ना रिक्वायरमेंट प्लेस करते हो, अकॉर्डिंगली फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए तो कस्टमाइज्ड फॉर्म के अंदर आपको वो ऑर्डर बना कर देता है। अच्छा, जब हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, जो कि ऑल्सो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग होती है, एक प्रोसेस फॉलो करती है, तो बेसिकली दोज प्रोडक्ट्स विच आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट, जिनके लिए स्पेसिफिकली आपको कहीं पे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मार्केट जाते हो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है उसको बाय कर लेते हो।
अब उसमें लाइक मैं अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करूँ तो आप जब भी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल सेगमेंट्स जो है वो आपको डिफरेंट डिविजन्स के अंदर नज़र आती हैं। ग्रॉसरी ले लें, कॉस्मेटिक ले लें, इलेक्ट्रिकल गुड्स ले लें, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसको एंड यूज़र तक पहुँचाया ताकि एंड यूज़र जो है वो उसकी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस प्रोडक्ट को खरीदे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे साथ माशाल्लाह बाकी पैनलिस्ट भी हैं और साथ में पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो और एक अपना एक लाइफ जो है वो गुजार चुके हैं, तो बहुत सारे चीज़ों का एक्सपोजर डेफिनेटली दे आर हैविंग। बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे एक टाइम तक एक प्रोडक्ट चली और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है ऑब्सलीट हो गई। एक नई चीज़ आ गई मार्केट के अंदर और उसने जो उससे पहले चलने वाली चीज़ थी उसको ऑब्सलीट कर दिया। इसकी जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो मोबाइल यूजेज के एतबार से अगर देखा जाए तो एक एरा जहाँ पे हम बटन वाले मोबाइल जो है वो यूज़ करते थे, और उसके बाद फिर वो एरा शिफ्ट हुआ एंड्रॉयड वर्जन पे, और उसके बाद अब मैक्सिमम लेवल पे जो यूज़र्स हैं वो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, आईफोन यूज़र्स हैं या एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। अब जब हम बटन वाले मोबाइल की बात करते हैं तो उस वक्त एट दैट स्टेज, यानी कि मैं अगर बात करूं तो अराउंड 2010 से पीछे, 2010 से अगर हम पीछे चले जाएं, तो उस वक्त उस पीरियड के अंदर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मेजॉरिटी जो हमारे यूज़र्स थे वो बटन वाले मोबाइल यूज़ करते थे, और उसके अंदर मेनली जो एक ब्रांड यूज़ होता था वो था नोकिया। अब हुआ क्या कि जी एक टाइम आया जब एंड्रॉयड लॉन्च किया गया, और उस वक्त जिस कंपनी ने उस एंड्रॉयड को लॉन्च किया वो उस वक्त बटन वाले मोबाइल के एतबार से इंतहाई थर्ड क्लास कंपनी मानी जाती थी, जिसे हम कहते हैं सैमसंग। जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ तो सैमसंग एंड्रॉयड लेके आया, और उसके बाद फिर देखते ही देखते एंड्रॉयड जो है वो फैलता चला गया, और लोगों में यूज टू, यानी कि उसकी जो फीचर्स थे वो लोगों को अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ कंपनीज मार्केट में आ गई जिन्होंने एंड्रॉयड वर्जन्स लॉन्च किए, और अकॉर्डिंगली हम आज देखते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर रहते हुए फिर वो उसकी भी अपग्रेड वर्जन्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक पॉइंट बेसिकली कनेक्ट करना चाहूँगा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। अगर तो ऑल्दो नोकिया के सीईओ जब उसका इंटरव्यू हुआ तो वो बेचारा रोते हुए उसने एक सेंटेंस जो है वो बोला था कि वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी फेल्ड। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ कनेक्ट होती है आती है वो होती है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब तक आप मार्केट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्ट रहते हो, जब तक आप कस्टमर के दिमाग, उसका माइंडसेट, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट, इन तमाम चीज़ों के साथ जब तक कंपनी कनेक्ट रहती है, तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये ऑटोमेटिकली जो उनकी प्रोडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो अपग्रेड होती रहती है, और वो रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट होती है वो मार्केट के अंदर इन रहती है। ये उस स्टेज पे नोकिया ने नहीं किया। अगर तो उसने इस चीज को किया होता तो फिर ऐसी स्टेज के ऊपर आज नोकिया का ब्रांड भी इस वक्त मार्केट के अंदर उसी ही लेवल के अंदर लेवल पर मौजूद होता, या मार्केट में बीइंग ए कॉम्पिटिटर अवेलेबल होता जिस तरीके से बाकी जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल है। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। लाइक हमने एक शिफ्ट देखा कि एक और क्या एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, हम टीवी की मिसाल ले सकते हैं कि पहले हम पिक्चर ट्यूब वाले टीवी यूज़ कर रहे थे। पिक्चर ट्यूब वाले टीवी से फिर हम शिफ्ट हुए एलईडी एलसीडी की तरफ, एलसीडी से फिर शिफ्ट हुए एलईडी की तरफ। तो वहां पर भी आप देखोगे तो ब्रांड शिफ्ट हुआ, और उसमें पहले जो ब्रांड्स पॉपुलर थे बाद में दूसरे ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो गए,
वो मार्केट में इन हो गए, उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया, और जो उससे पहले जो प्रोडक्ट्स ब्रांड लेके चल रहे थे, जो ब्रांड्स प्रोडक्ट लेके चल रहे थे, वो ऑब्सोलीट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए लाजमी है कि वो अपने कस्टमर की, अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट, माइंडसेट, उसकी अपग्रेडेशन, फर्दर जो भी उसकी एक थॉट प्रोसेस होता है ना, कि आज हमने यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट ये हो सकती है। या फिर एक टेस्ट लगाना कि लो जी हम इसको लॉन्च करके देखते हैं, तो पॉसिबल है क्लाइंट जो है वो उसको समझे उस प्रोडक्ट को, और अकॉर्डिंगली जो है वो फिर उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप कस्टमर के माइंड को रीड नहीं करोगे, जब तक आप यूजर की रिक्वायरमेंट को रीड नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट की जो मेन जो सेगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, उस चीज को जब तक आप कवर नहीं दोगे, तो इसका मतलब ये है कि तब तक आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर इन रहना, ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली अगर हम देखें, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने अपनी लाइफ में, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, तो कितनी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद होंगी इस हवाले से, कि जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट को आपने ऑब्सलीट होता हुआ देखा होगा, और आप खुद नई प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हुए होंगे, कि आपको वो प्रोडक्ट ज़्यादा अपील हुई होगी, बिकॉज वो जो नई प्रोडक्ट लेके आए, तो वो फिर उसने मार्केट को स्टडी करके, कस्टमर के माइंड को, उसके टेस्ट को स्टडी करके, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आए। और आज जो ओल्ड प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो सिर्फ इसी वजह से मौजूद है कि वो कस्टमर के माइंड को रीड करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को ग्रेजुअली वर्कआउट करते हैं और देखते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि आप कभी किसी ब्रांड के पास कोई आप इस्तेमाल करते हो, या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, या स्पेसिफिकली किसी ब्रांड की जाके परचेजिंग करते हो, तो वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, और फिर एक सर्टन पीरियड के बाद वो फिर आपको कॉल करते हैं कि जी आपने हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो आपको प्रोडक्ट कैसी लगी, आप क्या चाहते हो, उसके अंदर क्या बेहतरी आ सकती है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, जितने उनके यूजर्स बने, उन यूजर्स से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। तो बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि आपने सिर्फ एक डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया, और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है अब आप जो बेसिकली सिर्फ उसको संभाल के बैठ गए, लो जी हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं मार्केट में, प्रोडक्ट हमारी अच्छी बिक रही है। नहीं, उस रिक्वायरमेंट से फिर अगली रिक्वायरमेंट को स्टैब्लिश करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, कि आपने क्लाइंट की से अंडरस्टैंडिंग अपने पास जमा की, उसको फिर पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट किया, पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने उसका एनालिसिस परफॉर्म किया, और अकॉर्डिंगली फिर आपने आउटकम निकाला कि जी अब हमारी प्रोडक्ट के अंदर पॉसिबली ये चेंज आ सकता है। तो जब तक आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर चेंज लेकर नहीं आओगे, तब तक वो मार्केट के अंदर अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो कायम नहीं रख सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली चीज, तो सबसे पहली जो सीआरएम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर के माइंड को रीड करना, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या फ्लेवर है, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, उसका क्या टेस्ट है। इवन जो फूड इंडस्ट्री है, वो भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस वक्त आप देख रहे हो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट की टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो ज़्यादा बिकता है उसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर रहते हुए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ना सिर्फ ये है कि वो डाटा कलेक्ट करे ताकि वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो आप यूजुअली इस चीज़ को देखते होंगे कि डाटा साइंस के ऊपर बहुत काम होना शुरू हो गया। इनफैक्ट बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो डाटा साइंस के अंदर आपको जो है वो ग्रेजुएशन भी करवा रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवा रही हैं। और उस डाटा साइंस के अंदर मेनली जो आपका जो सेगमेंट कवर होता है, वो बेसिकली यही होता है कि डाटा को आपने कैसे रीड करना है, और उसके बाद उसको एनालाइज करके उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले होता है। अभी आजकल आप देख रहे हो एआई अपना रोल प्ले कर रहा है, तो सवाल ये है कि वो एआई की रिक्वायरमेंट यहाँ तक, एआई ने काम करना शुरू किया है, और बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने एआई सेटअप स्टैब्लिश कर रही हैं, बहुत सारी कर चुकी हैं, बहुत सारी कर रही हैं, और बहुत सारी उसको इम्प्रूव कर रही हैं। इवन अगर आप लाइक अगर मैं बात करूं
पहले एलन मस्क लेके आया चैट जीपीटी, उसके बाद गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी, फिर अभी जो मेन हमारे पास मौजूद हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कोपायलट यूज़ करता है, और मेटा एआई जो है वो आपका व्हाट्सएप यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं अब वो इस बात को सोचते हैं कि एआई जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए उनके सेटअप के साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ, ताकि जो उनका यूज़र है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट रहे। तो जब तक आप उन फैसिलिटीज़ को, उन उन उस सोच को और ज़्यादा आसान नहीं करोगे उसकी प्रोडक्ट की यूजेज के एतबार से, तब तक आपका यूज़र जो है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो डाटा आपके सामने मौजूद है उस डाटा को ना सिर्फ प्रॉपरली एनालाइज करना है, बल्कि उसका जो आउटकम है उस आउटकम को देखते हुए फिर आपने अगला अपना लाएमल तय करना है। और यही काम कॉस्टिंग के अंदर भी हो रहा होता है कि जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अब क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जो हो चुका वो ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेटअप्स, बहुत सारे जो है वो चीज़ें जो है वो कनेक्ट होती हैं आपके सीआरएम के साथ। अगर हम इम्पैक्ट के एतबार से देखें, मिसाल के तौर पर डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज के बाद उसको एनालाइज करना इन अ वे कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को आपकी क्वेश्चनेयर के एतबार से आंसर कर दे। ये एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए, कि जो रिक्वायरमेंट्स वो देखना चाह रहा है वो रिक्वायरमेंट्स उसके एनालिसिस के बाद आंसर हो जाए। उसके बाद फिर ये देखना कि हाँ अब इस चीज़ को अप्लाई कहाँ पे करना है। अब मिसाल के तौर पे एआई का यूज़ जो है वो यूजुअली जो है वो आपकी अर्बन अर्बन सेटअप्स में, जो एरियाज हैं उनमें ज़्यादा होगा, ना कि रूरल एरियाज में। तो उसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि मेरी अर्बन जो एरियाज हैं उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली एआई है, तो एआई को किस तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप प्लान करते हो कि रूरल एरियाज में जाके इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ तो आपका यूज़र ही नहीं है, ये एक सोच डेवलप हो जाती है। फिर आप देखते हो कि कस्टमर की नीड्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस हवाले से, कस्टमर की नीड्स क्या हैं उसके अंदर फिर उसका फ्लेवर ऐड करते हो, फिर अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन प्रोडक्ट्स को आप अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करते हो। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी माशाल्लाह हमारे और बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो वो भी अपने इनपुट्स इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो और ज़्यादा बहुत अच्छा पॉलिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच जिशान साहब, ओवर टू यू, थैंक यू सो mach. Thank you so much, Nishant sir. You have a nice and knowledgeable information shared with the audience as well. Now we have Nayab Sahat. Basically, she is a corporate trainer consultant of customer relationship management consultant in-house and back-house. So I will request Nayab that share some good knowledgeable ideas regarding the today's topic that is based on impact of customer relationship management in the new era of corporate sector. Please. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Nayab, introduce yourself, please. ओके, हम नायाब और मैं बैंक ऑफ पंजाब से हूँ। आईटी डिपार्टमेंट में डेवलपर हूँ। Right. So what you have said regarding the today's topic that is based on customer relationship management, either you are working in the corporate sector in a customer relationship side. So what your expectation and what your ideas regarding the today's topic? एक्चुअली मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने बताया कि कस्टमर रिलेशनशिप जो है हमारे साथ भी सेम ऐसी ही डेली बेसिस पे सिनेरियोज होते हैं कि अगर हम उनको अच्छी तरह गाइड करें, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट के बारे में लाइक हमारी जैसे बैंक है इसकी प्रोडक्ट्स होती है, कार्ड्स वगैरह के बारे में हम इनको बताएं, तो उससे रिलेटेड ही हमारा भी यही सारा इसी बेस पे काम होता है। ओके, सो आपके नजदीक क्या चीज मोस्ट कॉमन है कि सीआरएम के अंदर कि कस्टमर को किस तरीके से आप टैकल करोगे इन द टुडेज एरा, बिकॉज कस्टमर इज योर एसेट एंड की पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि कस्टमर्स को हम अपने सीआरएम को बेसिकली किस तरीके के साथ एक 100% प्रोफाइल के ऊपर ला सकते हैं, बिकॉज नाउ डेज इन अ डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो सबसे बड़ा वीक एरा है ऑफ द कंपनी दैट इज सीआरएम, क्योंकि हम कस्टमर्स की बिल्कुल। गुडविल को वर्कआउट कर रहे हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंसर्न ऑफ द कस्टमर्स,
I think this is the main dilemma of non-success of the companies because customers को वो चीज नहीं मिल रही जो चीज वो चाह रहे होते हैं. तो how we retain our customer और how we हमारी जो complaint sector है हम उसको किस तरीके से remove कर सकते हैं. एक्चुअली हमारे साथ तो यही मसला है ना कि कस्टमर्स को जब हम बताते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, सबके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं. किस हम 100% तो किसी को भी नहीं दे सकते, आई थिंक सो. Ji, जी अस्सलाम वालेकुम। we have a panelist also over here, Nosheen Waqas. She is also an educationist and working in a different institution as well. So I will request Nosheen that today, what you have said regarding the today's topic, that is based on the impact of customer relationship management in the today's era of life. Please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, हाउ आर यू सर? Nice to see you again in the webinar. And Thank you so much. definitely in the corporate sector, customer relationship management have a very significant impact on business success. And if we are going to talk about the relationship of customer and a company towards achieving the goal, they would have definitely different scenarios and expectations which we are going to meet in that specific time frame. Let me tell you about first of all the personalization. Like tailor your interaction to individual customers and needs and preferences. If you will qualify on these 2 or 3 points, your product will be highly recommended in the market and will never ever face any kind of loss. And the second one is the proactive communication. Anticipate and address the customer concerns before they escalate. Means that whenever you are heard about your product that something is better than your product in the market have launched, you should have a review, you should have a survey about your product, with what the people are doing for the very next coming days, what they are thinking about it, and what they are expecting from you. If you are going to meet the expectation to the customer, then you will throw the market definitely. And the third one is empathy and understanding. Definitely show the customer that you have value and understand their business and understand their concerns. लाइक मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करूंगी। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और जब जाके डॉक्टर से बात करते हैं कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ इशू, और अगर वो हमें कह दे बस ठीक है मुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ क्या करना है, आई नो वेरी वेल, आपने बस बता दी एक दो बातें, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हमें एक डॉक्टर सुन लेता है ना प्रॉपरली, जैसे वो 5 से 7 मिनट हमें देता है, हम कहते हैं मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मेडिसिन खाने से पहले ही हम अपने आप को इजी महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक कस्टमर का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है कि जैसे एक कंपनी है वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसे सबसे पहले अपने कस्टमर को सुनना है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द मार्केट रनिंग क्राइटेरिया, मार्केट की डिमांड्स क्या हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स क्या आ रहे हैं जो हमारी प्रोडक्ट को ओवरकम करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इट्स बेटर टू एनालाइज बिफोर द लॉस, कि हम अगर लॉस को बेयर करने की तरफ जाएं उससे बेहतर है कि हम gear up रखें अपने आप को towards the latest demands of the society and to meet the upcoming trends of definitely by the competitors. And the next one is responsive services. Whenever they required, we have to provide them. We will not deal with the excuses, any kind of excuses कि we will shift and we will going to arrange it. We have to arrange it on the very rapid growth for all of them. Like, and if we are going to talk about further, it's a continuous improvement. As I am saying before, कि continuous improvement बहुत जरूरी है। वक्त के साथ हर चीज बदलती है, और जब हम किसी चीज में अपने साथ फुल स्टॉप ऐड कर लेते हैं कि वी विल नॉट गो बियॉन्ड दिस फुल स्टॉप, तो डेफिनेटली हमारा डाउनफॉल वहीं पे शुरू हो जाता है। हमने देखना है कि सबसे पहले हमारी मार्केट में डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है, हमारी प्रोडक्ट में कौन से ड्रॉबैक्स हैं जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है, वाई पीपल आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द अदर गुड्स।
और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने कस्टमर को सुनेंगे। और उसको सुनने के लिए हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे अभी amazon ने CRM सिस्टम लॉन्च किया है। A customer can track their orders, services, personalize their recommendations, each and everything. They can talk with the customer support service. तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि पीपल, उनके लोग जो उनकी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उन पे रिलाई कर ओके रहे हैं। मशीन, इसको 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि ओके। टाइम एंडिंग ओके आ सर। रहा है, तो 2 मिनट्स में कंक्लूड करते हैं। जी सर, और डेफिनेटली अगर हम इन चीज़ों पर ओवरकम करेंगे तो वी विल इंक्रीज द रेवेन्यूज, enhance the customer retention definitely, with the better decision making and improved operational efficiency with the time, and competitive advantages definitely we will get. Thank you very much. Thank you so much, Nosheen. Thank you so much, Nayab, and especially Sir Zishan. We proceed further from you towards the closing ceremony ending of this session. So kindly we will proceed so that, please. Thank you, जी. So would like to request to our other panelists if anyone wants to add something in the today's topic. No one? All right. So with regards to today's topic, माशाल्लाह हमारे पास जो inputs आए उसके हवाले से मिस नायाब ने जो भी पॉइंट्स अपने एंड से ऐड किए वो एक ऐड ऑन था आज के हमारे टॉपिक के हवाले से। और बेसिकली जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये इतना इजी टास्क नहीं है, इतना इजी जॉब नहीं है। हम यूजुअली तो एक बिजनेस सेटअप करने का प्लान करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि हमने एक शॉप सेटअप कर ली। अब जी वो शॉप चूँकि विजिबल है तो कस्टमर जो है हमारे पास आ जाएगा। कस्टमर जो है वो बेसिकली आज के टाइम पे जो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो आज के टाइम पे किसी भी कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो मुमकिन तौर पे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, या फिर जो प्रोडक्ट आप लेके आना चाह रहे हो अगर आप ले लाने में कामयाब हो जाते हो, कस्टमर अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हो, तो बहुत मुमकिन है कि उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, उसकी कस्टमर रिक्वायरमेंट को देखते हुए कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर जो है वो उसी से लिंक करती हुई उसी ही क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर इन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी के लिए पहला चैलेंज कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आए और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करें, यानी उसकी आदत डालें। और उसके बाद जो दूसरा चैलेंज उसके साथ मौजूद है वो ये कि वो सस्टेन करे मार्केट के अंदर, कि जो प्रोडक्ट वो लेके आया है मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो और वो अवेलेबल रहे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट में रहे और कस्टमर उसको यूज़ करे